Good morning, dear students. Now we are going to begin with the new chapter, that is body fluids and circulation. In human physiology, till now we have discussed about two very important chapters, that is digestive system and our respiratory system. Now we are moving on to the third system, that is the circulatory system. So in this chapter, we are going to discuss about the circulatory system of our body and its components. In our body, there is a closed circulatory system. It means that the body fluid will be circulating in the specific capillaries, or you can say blood vessels, or in the heart. So such a pattern of circulation of the body fluids is called a closed circulatory system. In this chapter, we are going to study about different types of body fluids that we have. Importantly, it includes the blood and the lymph. Other than that, we are going to study about the structure of heart and the functioning of heart, and how is our circulatory activities regulated. And finally, the disorders associated with the circulatory system will be discussed in this chapter. So let us now begin with the introduction of the chapter. Now when we are studying the circulatory system, first of all it is important to know that why do we have a circulatory system? What is the purpose of having circulation of the fluids in our body? So we know that in our body, there are large number of cells, and each cell requires a proper amount of oxygen. It requires a proper amount of nutrients and several other essential substances like inorganic and organic substances. तो हमारे हर एक सेल को ये न्यूट्रिएंट्स, ये ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. साथ साथ में हर एक सेल जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करता है. जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट, जब प्रोटीन्स हम एक्सेस में लेते हैं तो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, तो उन्हें रिमूव करने के लिए, राइट, एज वेल एज फॉर रिमूविंग सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, देयर इज इम्पोर्टेंटली नीड ऑफ अ सर्कुलेटिंग सिस्टम, a circulating system which will be supplying these substances to the cells and taking away the substances from the cells. So for this exchange things, there is requirement of the circulatory system. So cells in our body require nutrients, require oxygen and other essential substances. हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, हर एक सेल को क्या चाहिए? Each cell will be requiring oxygen. Oxygen for what? For the oxidation of the food that is present inside the cell. Mainly carbohydrates के oxidation के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है. साथ में फैट्स और प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं रेस्पिरेशन. इसके अलावा सेल्स ऑल्सो रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स होंगे तो ब्रेकडाउन होंगे, और ब्रेकडाउन होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी. तो हर एक सेल को न्यूट्रिएंट की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, और दूसरे एसेंशियल सब्सटेंसेस जैसे कि फॉस्फेट्स हैं, राइट, उनकी जरूरत होती है. देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेशियम, देयर इज स्लाइट रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम. तो इन सब की जरूरत सेल के अंदर होती है. तो ये सारे सब्सटेंसेस को सेल को पहुंचाना पड़ता है. Moreover, cells eliminate various waste material. अब जब सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है तो मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड प्रोडक्ट होता है वाटर, राइट. तो वाटर जो है वो तो बॉडी में दूसरी एक्टिविटीज के लिए यूज हो जाता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड है या तो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसे कि अमीनो एसिड है, कोई ऐसे एक्सेस अमीनो एसिड्स है जिनकी जरूरत नहीं है, तो इनको बॉडी से बाहर रिमूव करना पड़ता है, सेल्स से बाहर रिमूव करना पड़ता है. So this supplying the substances to cells
and taking up the substances from the cell requires a circulatory system. So supplying the essential substances to cells and removing the waste requires the circulatory system. और सर्कुलेटरी सिस्टम में किसकी जरूरत पड़ती है? रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स. तो जब हम बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत है, something which will be circulating and providing it to cells and collecting it from cells, two-way exchange. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम इंक्लूड क्या करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम में इंक्लूड होते हैं हमारी बॉडी के एसेंशियल फ्लूइड्स, राइट? बॉडी फ्लूइड्स विल बी टेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर बॉडी. अगर हमारा वेट 70 kg है तो वी आर हैविंग अबाउट 45% ऑफ ऑल बॉडी फ्लूइड्स इन इट. मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं. जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्लड ही एक बॉडी फ्लूइड है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स दैट आर फाउंड इन अवर बॉडी, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कौन से बॉडी फ्लूइड्स होते हैं. ठीक है, अब हमारे पास तो बॉडी फ्लूइड्स है, बट व्हाट विद द लोअर ऑर्गेनिजम्स? लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्पॉन्जेस हैं या तो सिलेंट्रेट्स हैं, डू दे हैव एनी टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड्स? नो, बट स्टिल दे हैव अ स्पेसिफिक सर्कुलेटरी पैटर्न, and for them this fluid will be the surrounding water. So in organisms like sponges and coelentrates, the body fluid is the surrounding water. For them the body fluid is going to be the surrounding water, right? तो उनके पास कोई बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड या लिम्फ या ऐसा कुछ नहीं होता. तो बाहर से जो पानी अंदर आता है उसी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स एंटर होते हैं. दे एंटर इनटू द चैनल्स विद इन देयर बॉडी एंड देन आफ्टर दे आर एलिमिनेटेड. सो सराउंडिंग वाटर itself will be working like their body fluid. It enters through the cavities. It enters through the cavities and then eliminates the waste out. तो ये बॉडी कैविटीज थ्रू एंटर होते हैं और एंटर होने जाने के बाद एंटर होते हैं तो न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं, राइट? सराउंडिंग वाटर में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जूप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, वो एंटर होते हैं एंड देन आफ्टर गेटिंग प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज्ड इन द सेल्स they are removed through the surrounding water itself. मतलब जो वाटर एंटर हुआ है वैसे ही वैसे वाटर बाहर भी रिमूव हो जाएगा. तो इनके पास कुछ सर्कुलेशन के लिए है पर कोई वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है. अगर हम किसी और ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम इनसे आगे ऑर्थवॉर्म्स की, प्लैटीहेलमिंथिस की बात करें तो प्लैटीहेलमिंथिस और एस्केलमिंथिस जो होते हैं वो कंप्लीटली पैरासाइटिक होते हैं. तो पैरासाइटिक होने की वजह से उनके पास कोई डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होती. वो डायरेक्टली क्या करते हैं? दे हैव हुक्स एंड सकर्स जिसकी मदद से वो बॉडी में अटैच हो जाते हैं एंड देन आफ्टर दे डायरेक्टली सक अप द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी. सो दे डोंट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम. सबसे पहली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इट कम्स इन एनीलिडा, दैट इज अर्थवॉर्म में होती है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिनका ब्लड रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. आगे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, राइट? मतलब बॉडी फ्लूइड्स जो है, देयर विल बी अ फ्लूइड प्रेजेंट इन द बॉडी जिसे हम कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड and that will function for supplying the nutrients to all the cells. इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इतनी डेवलप नहीं है, but still they have fluids, coelomic fluids in the body which will be supplying the nutrients to all the cells and collecting the waste from them.
राइट। तो ये होते हैं बॉडी फ्लूइड्स। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे पास दो तरह के फ्लूइड्स हैं, राइट, इंट्रासेल्यूलर एंड इंटरसेल्यूलर फ्लूइड्स। देयर इज presence of two types of fluids, intracellular fluids and extracellular fluids। मतलब दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड्स एंड एक्स्ट्रासेल्यूलर। जब हम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड्स की बात करते हैं, दीज आर द फ्लूइड्स दैट आर गोइंग टू बी प्रेजेंट विद इन द सेल। ओके, सो दीज आर द फ्लूइड्स प्रेजेंट इन द सेल्स। जो सेल्स होते हैं उनमें भी फ्लूइड्स होते हैं एंड दे हैव सिमिलर कंपोजिशन। मतलब अलग अलग सेल्स होंगे पर उनका कंपोजिशन जो होता है वो नियरली सेम होता है एंड दे विल बी हैविंग वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। उनमें ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही, मतलब सेल के अंदर का फ्लूइड मतलब क्या, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, दैट साइटोप्लाज्म हैज वाटर आल्सो, इट हैज सेवरल मिनरल्स आल्सो, इट हैज सम ऑफ द प्रोटीन्स आल्सो, सो कंपोजिशन विल बी वेरिएबल, राइट। तो कंपोजिशन जो है उसके कंस्टिट्यूएंट्स जो होंगे, कंस्टिट्यूएंट्स आर मेनी, बहुत से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं पर नियरली कंपोजिशन जो होता है वो वन सेल टू अनदर सेल इट इज नियरली गोइंग टू बी द सेम, राइट। तो सेल के कंपोजिशन जो होगा वो कंपोजिशन सेल टू सेल वेरी थोड़ा बहुत करेगा बट नियरली उनका कंपोजिशन सेम होता है एंड इट इज मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। जैसे कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है पोटेशियम, राइट, फॉस्फोरस, प्रोटीन्स, राइट, moderate amount of there will be magnesium, moderate amount, calcium नहीं होता, right, small amount of sodium और chlorine is present, calcium नहीं होता पर magnesium होता है। तो अलग अलग components present होते हैं within the cell। पर हम ये जो बात करने वाले हैं in our circulatory system, that is about the extracellular fluids which are present outside the cell। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेल के बाहर प्रेजेंट है। और ये जो कंपोनेंट्स हैं जो सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, अगर उनकी बात करें दैट इज कंपोनेंट्स प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, तो इनमें कई तरह के कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। सो blood plasma is such a fluid that is present outside the cell। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं लिम्फ भी सेल में नहीं प्रेजेंट होता, सेल के बाहर लिम्फ जो है वो एक एडिशनल फ्लूइड है जो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। देन देयर इज ऑक्यूलर फ्लूइड जो आईज में होता है, राइट। आईज में हमारे पास एक फ्लूइड है जिसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर एंड एक्वियस ह्यूमर। So ocular fluids that are present in the eyes, then there are synovial fluids जो हमारे joints में present होता है, right? तो synovial fluid in joints, interstitial fluid जो हमारे cells, between the cells it is present, okay, between the cells, जो cells होते हैं, tissues होते हैं, उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मतलब हमारी बॉडी में दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, एक जो फ्लूइड सेल में प्रेजेंट है, अब नियरली सारे सेल का कंपोजिशन सेम होगा पर अंदर कंपोनेंट्स थोड़े बहुत अलग होंगे। सम विल हैव मोर अमाउंट ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, some will have slightly more amount of magnesium and that depends upon
metabolic activity occurring inside the cell. But more importantly, what we are going to discuss is extracellular fluids. extracellular मतलब सेल के बाहर है. अब सेल के बाहर है मतलब कहाँ पे है? तो सेल के बाहर कई फ्लूइड्स होते हैं जो आइज में प्रेजेंट होते हैं, कई फ्लूइड्स हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट है, राइट. तो वैसे ही एक फ्लूइड है ब्लड, दूसरा फ्लूइड है प्लाज्मा, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होते हैं, और इन्हीं के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इन आवर लेक्चर्स. ऑक्यूलर फ्लूइड आइज में होता है, साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट्स में होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड टिश्यू सेल्स के बीच में होता है. इट शोज दैट वी हैव वेरिएबल अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. But out of these body fluids, why we are talking about blood? Because blood is going to be the major connective tissue that will be connecting different parts of the body. जैसे कि ocular fluid सिर्फ eyes में है, right? It is not connecting other parts. पर blood और lymph ऐसे fluids हैं which will be connecting every cell of our body. And so we are going to include blood and lymph as a part of our circulatory system, and so we are going to discuss about them in detail.